सो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, हम लोग फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में हम लोग को रिलेशन पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो यहाँ पे सेम चीज बेसिकली अगर टॉर्क लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। सो वील सी हाउ टू प्रूव दैट। हमें पता है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था कि जैसे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v होता है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होगा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम L इज I इंटू ओमेगा। डिफरेंशिएटिंग एंगुलर मोमेंटम या डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, हम लोग को क्या मिलेगा अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो L को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ I ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। I बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कांस्टेंट है, बाहर लेके चले जाएंगे, डिवाइडेड I इंटू डी ओमेगा बाई dt। So d omega by dt basically rate of change of angular velocity, angular acceleration हो जाता है। So this is I alpha. So I alpha is nothing but the torque applied on an external torque acting on an object. So we know that the rate of change of angular momentum is equal to torque. So where alpha is d omega by dt, ये हम लोग देख रहे हैं, torque is equal to I alpha है, तो अगर इसको replace कर दिया तो torque is equal to dl by dt. So torque acting on a body is measured by the rate of change of angular momentum of the body. So जैसे rate of change of linear momentum is force, उसी तरह rate of change of angular momentum is equal to torque. Clear है सभी को? Yes sir. Now principle of conservation of angular momentum, तो जैसे principle of conservation of linear momentum था, वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर net external force is equal to 0, then the total linear momentum of the system is always constant. So अब ये according to this principle, ये जो angular momentum के केस में बात करें, so according to principle of conservation of angular momentum, when no external torque acts on a system of particle, then the total angular momentum of the system remains always a constant. So if net external, so if there is no external torque, so the sum of all the torques, external torques, if it is equal to 0, then we say that the angular momentum is constant. So total angular momentum is equal to constant. ठीक है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि dl by dt 0 है, राइट? dl by dt 0 है, मतलब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, राइट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो L इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। सो for a system of n particles making up a rigid body, total torque acting on the body is due to, so total torque acting on the body is due to external forces only. So internal forces between the particles of the body do not contribute to torque. जब मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसी के वजह से टॉर्क होगा, इंटरनल फोर्स के वजह से कोई टॉर्क नहीं होता है। सो द टोटल टॉर्क इज rate of change of angular momentum. So when no external torque act on the system, then that means total torque acting on the system is equal to 0. So that means the rate of change of angular momentum, total angular momentum is 0. Why? Because total torque is 0. So this will give you the total angular momentum equal to constant. So agar that is the sum of all the एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln n पार्टिकल्स हैं,
उन सारे पार्टिकल्स का अगर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग वेक्टरली ऐड कर देंगे तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर. So this is the principle of conservation of angular momentum, right? So it means that net angular momentum at some initial time is equal to net angular momentum at some later time, right? So total angular momentum, initial angular momentum is equal to total final angular momentum. So if net external torque acting on the system is zero, angular momentum L of the system remains constant, no matter what changes takes place within the system. System के अंदर जो भी change होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर external torque zero है तो angular momentum conserved रहेगा. Now some examples of conservation of angular momentum. तो इसका जो application है conservation of angular momentum का. So the angular velocity. So some examples of conservation of angular momentum. पहला जो है the angular velocity of revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit increases. So when the planet comes closer to the sun and vice versa. तो basically हम लोगों ने देखा है कि जो एरिया वेक्टर होता है, जो केपलर्स लॉ कहता है एरिया वेक्टर कांस्टेंट होता है. तो अगर ये जैसे अगर हम लोग we know that planets revolve around the sun in elliptical orbits और उसके दो फोकसेस होते हैं. एक फोकस पे लेट्स से यहाँ पे सन है, राइट? तो जब प्लैनेट इसके पास आएगा, राइट, तो जब इसके पास रहेगा प्लैनेट तो बेसिकली इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है और जब इससे दूर रहता है तो स्पीड लेस होता है ना. जिसका कि रीजन ये दिया गया था, केपलर ने ये लॉ दिया था कि भाई एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट विल बी सेम इन ईच ऑफ दिस. तो बेसिकली वो एंगुलर मोमेंटम से भी तुम समझ सकते हो mvr, यहाँ रेडियस ज्यादा है तो स्पीड कम होगा, यहाँ रेडियस कम है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना. अगर मोमेंटम कंजर्व्ड रख रहे हैं, mvr हमारा एंगुलर मोमेंटम है, राइट, तो mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2. अब ये दोनों अगर सेम हो गया, m और m कैंसिल कर लो तो इससे क्या आ गया, v1 बाय v2 इज इक्वल टू r2 बाय r1, है ना. तो ये मान लो r1 है, ये r2 है, राइट. तो v1 बाय v2, अब r2 इज ग्रेटर देन r1. सिंस r2 इज ग्रेटर देन r1 दैट मींस v1 इज ग्रेटर देन v2. तो जब जो प्लैनेट सन के पास आएगा तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. So वही लिख रखा है, when planet comes closer to the sun, right, the speed increase, angular velocity of revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit increases. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Now second वाला है circus acrobat performs feats involving spin by bringing her arms and legs closer to the body. Her moment of inertia I decreases. तो जब हम कह रहे हैं कि angular momentum conserved रहेगा तो I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, right? Angular ये moment of inertia into angular velocity is linear momentum which is conserved. So अगर हम I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, मान लो ये सर्कस एक्रोबैट है, ये जब घूमेगी, मतलब जो टर्न कर रही है तो जब उसके हाथ मतलब आर्म्स ऐसे स्ट्रेच्ड रहेंगे तो अब यहाँ पे जो इस पोर्शन और इस पोर्शन का ये देखो रेडियस काफी ज्यादा होता है. तो इसके वजह से यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा, I1 इस केस में इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इस केस के I2 के बराबर. इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है तो इसका मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2. अगर I1 ग्रेटर देन I2 है तो omega 1 will be less than omega 2. Why? Because the product of this is constant. So I1 by I2 is equal to omega 2 by omega 1. So I1 अगर I2 से बड़ा है तो omega 2 omega 1 से बड़ा होगा. तो इस केस में
जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। और यही वजह है कि जब वो अपने हैंड्स को क्लोज लेके आएगी तो तेजी से स्पिन करने लगेगी, और वही जब अपने हैंड्स को दूर लेके जाएगी, मतलब फैलाएगी बिल्कुल, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. आई बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा, ठीक है? तो वो अपना ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करके अपने एंगुलर वेलोसिटीज को चेंज कर सकते है ना? Exactly on the same basis, an ice skater or a ballet dancer, ठीक है? So ice skater and ballet dancer performs the feat. Suppose the ballet dancer is rotating with her arms and legs stretched outward. When she folds her arms and brings the stretched leg close to other leg, her moment of inertia decreases and hence her angular velocity increases. तो वो जनरली बैले डांसर वगैरह को देखोगे जब वो आर्म स्ट्रेच करती है तो रोटेट कर रही होती है, खासकर ये जो आइस स्केटर है या बैले डांसर है। बट जैसे ही वो जब वो अपने आर्म्स को अपने पास लेके आ जाएगी बॉडी के, क्लोज टू द बॉडी, तो फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। The spinning volunteer, a person carrying dumbbells in his hand and standing on a rotating platform, can change the speed of the platform. तो बेसिकली अगर एक डंबल लेके आप अगर मतलब डंबल को दूर लेके जाओगे तो स्पीड स्लो हो जाता है, और डंबल को पास लेके आओगे तो स्पीड स्लो हो जाएगा। उसके अलावा एक स्प्रिंग बोर्ड डाइवर, तो यहाँ स्प्रिंग बोर्ड डाइवर में भी देखोगे जब ये डाइव करता है ऊपर जाता है, और जब वो मतलब जब उसको समर सॉल्ट करना होता है, राइट, तो नंबर ऑफ समर सॉल्ट जितने करेगा उसके हिसाब से पॉइंट्स होता है, जहां तक मतलब जो जो इस पर्टिकुलर गेम में, तो जितना ज्यादा अपने बॉडी को क्लोज लेके आता है ना, उतना ज्यादा नंबर ऑफ समर सॉल्ट्स हो जाता है। तो इसीलिए यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बॉडी को कितना क्लोज लेके आ रहा है। जितना क्लोज लेके आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना लेस हो जाएगा, क्योंकि मास अब उतना छोटे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे उसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लेस हो जाता है। उसके बाद while jumping a cat stretches its body along with its tail so that its moment of inertia increases, और वो स्ट्रेट लैंड करे। तो जनरली बिल्ली या कोई भी चीज को ऐसे कूदते देखोगे ना, किसी पे जंप करते हुए, तो तुम देखोगे कि वो अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर लेती, ठीक है? हमको बिल्ली बनाने आता नहीं है, जो भी कंसिडर कर लो ये बिल्ली है, तो अपने हाथ को तो अपने हाथ को और पाँव को बिल्कुल स्ट्रेच कर लेती है जिससे कि वो लंबा कूद सके, ठीक है? क्लियर है बच्चों? यस सर। तो अब हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है? So when moment of inertia of a body about any given axis is known, we can calculate moment of inertia of same body about another axis using the two theorems on moment of inertia. तो देखो, अगर हम लोग को किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको करने में हमें दो थ्योरम्स जो है वो हेल्प करता है। पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहता है कि अगर हम लोग एक लेट्स से एक पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर उसको हम लोग शिफ्ट कर दें, मान लो एक ये रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से ये I1 है, और हम लोगों को इसको शिफ्ट कर देना है लेट्स से x डिस्टेंस से। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा वो निकालने के लिए इसको अगर हम लोग एक एक्सिस इसके पैरेलली हम लोग दूसरा एक्सिस लेते हैं,
तो गिवन एक्सिस के पैरेलल अगर दूसरा एक्सिस लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो रूल है उसको हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं. So according to the theorem of parallel axis, moment of inertia of a rigid body about any axis AB is equal to the moment of inertia of the body about another axis KL, passing through the center of mass C of the body in a direction parallel to AB. So let's say we have an axis AB. इसके about जो moment of inertia है, if it is known, and if we have to find the moment of inertia about AB, and moment of inertia about KL is already given, which is passing through the center of mass. So what we'll do, let's say we know the moment of inertia I here, and we want to know the moment of inertia about AB. So moment of inertia about AB will be equal to moment of inertia about KL plus mass of the object अगर m है और उसको कितने से शिफ्ट कर रहे हो, h से शिफ्ट कर रहे हो. ये जो शिफ्टिंग है पैरेलली कितने से हम शिफ्ट कर रहे हैं, h से शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस ऑफ mh स्क्वायर. जितने भी डिस्टेंस है उसको शिफ्ट करते हैं एक्सिस को, प्लस ऑफ दैट मच m into h स्क्वायर कर देंगे. तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम लोग, और ये जो थ्योरम है इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं. क्लियर है? तो अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और हमको उसी के पैरेलल h डिस्टेंस पे दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, so that can be found by the formula moment of inertia about KL plus mh square gives you moment of inertia about AB. Clear है? Yes, sir. हाँ सर. So if h is the perpendicular distance between the axis AB and KL, है ना, तो let's say जो perpendicular distance है AB और KL के बीच में h है, then according to theorem of parallel axis we have moment of inertia about AB is moment of inertia about KL plus of mh square. Now proof of this, suppose the rigid body is made up of n particles of masses m1 m2 m3. तो प्रूफ आता नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज से. जो प्रिंसिपल ऑफ ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इनका स्टेटमेंट आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन आता है. So suppose the rigid body is made up of n particles of masses m1 m2 m3 mn at perpendicular distance r1 r2 r3 rn respectively from the axis KL, passing through the center of mass C of the body. तो मान लो इस एक्सिस से जो डिस्टेंसेस हैं अलग अलग, है ना, बॉडी के, वो RI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर मास को MI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो if RI is the moment perpendicular distance of the particle of mass MI from KL, तो moment of inertia about KL will be summation of MI into RI square. ये जो बेसिक डेफिनेशन है moment of inertia. So this is basic definition of moment of inertia. Now the perpendicular distance of ith particle from the axis AB is Ri plus h. ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसका, दिस इज Ri plus h. So moment of inertia about AB is Mi times Ri plus h का whole square. So moment of inertia about AB is equal to Mi times Ri plus h का whole square summation of I is equal to 1 to. तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब देखो अगर हम लोग को जैसे KL के अबाउट निकालना था, अब AB के अबाउट निकालना है, तो जितने भी ये इस एक्सिस से अगर डिस्टेंस Ri था, तो इस वाले एक्सिस से सेम पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Ri प्लस h हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में h है डिस्टेंस, तो Ri में h को ऐड कर देंगे, तो ये AB से अब जो डिस्टेंस हो जाएगा Ri प्लस h होल स्क्वायर हो गया, तो Ri स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RIH। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू एक्सिस ए बी हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब आई ए बी को अब क्या करो, समेशन साइन को आप अंदर लेके चले जाओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी समेशन, जो हम लोग का वहां पे जो इक्वेशन था वो ये था, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई प्लस एच होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया था, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RI इंटू एच। इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एम आई एच स्क्वायर प्लस 2H एम आई इंटू आर आई। ठीक है। अब as the body is balanced about the center of mass, the algebraic sum of the moment of the weight mg of all the particles about an axis passing through C must be 0. So अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे जो फोर्स होगा, हमें पता है कि जितने भी वेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर उसका मोमेंट निकालोगे तो वो सारा 0 होगा। So sum of the moment of weights of all the particle about the axis passing through C, center of mass के about, this is 0. G बाहर ले लोगे, MI/RI 0 हो गया, G is not equal to 0, इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो समेशन ऑफ MI/RI ये 0 हो गया, राइट। उसके अलावा समेशन ऑफ MI क्या है, M के बराबर है, तो ये समेशन ऑफ MI/RI 0 हो गया, तो इसको तो 0 लिख लेंगे। और एच स्क्वायर को बाहर ले लो, समेशन ऑफ एम आई जो है दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम, और समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL। इसको अगर हम लोग लिखते हैं, ये जो 20th इक्वेशन है उसको समेशन ऑफ आई ए बी स्क्वायर, समेशन ऑफ आई ए बी इज इक्वल टू, ये जो चीज है इसको हम लोगों ने लिख लिया IKL प्लस ये समेशन ऑफ एम आई को हम लोग कैपिटल M लिखते हैं, M इंटू एच स्क्वायर और प्लस 0, तो ये तो 0 ही है, थर्ड वाला तो चलाएंगे। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB is मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL प्लस कैपिटल M इंटू एच स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब आ जाते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में ये है कि अगर दो एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, या फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो एक्सिस लेते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस का डायरेक्शन। तो अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस will be sum of moment of inertia along x axis plus y axis. So perpendicular theorem of perpendicular axis ये होता है कि Iz is equal to Ix plus Iy, मतलब moment of inertia about x plus moment of inertia about y is equal to moment of inertia about z. So according to the theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of a plane lamina, एक सेकंड, yeah, so according to this theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of a plane lamina, that is a two-dimensional body of any shape or size about any axis OZ perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes OX and OY in the plane of lamina, meeting at a point where the given axis OZ passes through the lamina. तो अगर हम लोगों को IZ निकालना है जो कि इस लैमिना के परपेंडिकुलर है, मतलब एक प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
तो प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है, एक हो गया ये डायरेक्शन आई एक्स और दूसरा हो गया ये डायरेक्शन आई वाई। तो इस प्लेन में जो लैमिना है, लैमिना मतलब पतला सा एक एरिया, तो इस प्लेन में, इस लैमिना में जो ये हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, राइट, उनके अगर उन एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, आई एक्स और आई वाई के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू बोथ आई एक्स एंड आई वाई will be equal to Iz, and the sum of both the moment of inertia along x and y axis is equal to moment of inertia along z axis. So Iz is equal to Ix plus Iy. This is what is known as theorem of perpendicular axis. Clear है? Clear है बच्चों? Yes, sir. इसका भी प्रूफ है इसी पे बेस्ड कि सपोज द लैमिना कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 एंड mn। कई सारे पार्टिकल्स है, मान लो एक मास mi यहाँ पे है। अब at perpendicular distance r1 r2 r3 rn, perpendicular distance of these particles from the axis oy, so देखो इसका जो z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ri हो गया, ठीक है। x एक्सिस से जो ये x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो yi हो गया, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो xi के बराबर है, ठीक है। तो जब हमें Ix निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x निकालना है, तो दिस विल बी समेशन ऑफ mi इंटू yi स्क्वायर। इस पॉइंट, इस मास की वजह से यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, तो जितना मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस yi स्क्वायर है, तो mi इंटू yi स्क्वायर हो गया। उसी तरह y एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो mi इंटू xi स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऑफ mi इंटू xi स्क्वायर हो गया। अब z एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दिस इज परपेंडिकुलर बेसिकली, ये जो डायरेक्शन है ये भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हमें पता है ix प्लस iy इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi इंटू xi स्क्वायर plus yi square. So this is equal to summation of mi into xi square plus yi square करेंगे तो zi square, sorry ri square होगा। यहाँ पे देखो ri is equal to xi square plus yi square. So summation of mi ri square हो गया, और summation of mi ri square का मतलब this is equal to iz, ठीक है। So Ix plus Iy क्या हो गया, Iz के बराबर हो गया, which is known as theorem of perpendicular axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So वही चीज यहाँ पे बता रखा, Ix plus Iy करेंगे तो समेशन ऑफ mi into yi स्क्वायर हो गया, समेशन ऑफ mi into xi स्क्वायर हो गया, समेशन ऑफ mi को बाहर कर ले देंगे तो xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। Now xi square plus yi square is basically ri square. So ri square is equal to xi square plus yi square. So ix plus iy is equal to summation of mi ri square, which is equal to iz. So this is what is known as theorem of perpendicular axis. Now moment of inertia of a thin circular ring. तो एक पतले से रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लो हम लोग एक dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, राइट।
टोटल मास इस रिंग का मान लो m है, ठीक, इस पूरे रिंग का अगर मास m है, रेडियस r है, तो मास पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ ऑफ द, ये रिंग कितना हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस है 2 पाई r हो जाएगा लेंथ ऑफ द रिंग. सो नाउ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग निकालना है, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया. अब कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग dx, तो dx का जो स्मॉल मास dm होगा, दिस इज m बाय 2 पाई r इंटू dx. ठीक है, अब ये जो dx है, तो ये हमारा जो मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज m बाय 2 पाई r इंटू dx, इसको हम लोग dm कहते हैं. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट y ओ y डैश, तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिस इज dm इंटू r स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. dm किसके बराबर है, m बाई 2 पाई r इंटू dx के बराबर, इंटू r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक r और r कैंसिल हो जाएगा, mr बाई 2 पाई dx. As the small element can lie anywhere over the entire length of the ring, that is from x is equal to 0 to x is equal to 2 pi r. तो ये जो हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक. सो दिस इज 0 टू आई, और एम आर बाई 2 पाई डी एक्स, जो डी एक्स का वैल्यू है दैट इज 0 से 2 पाई आर. सो दिस विल बी, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, एम आर बाई 2 पाई इंटू डी एक्स, तो एम आर बाई 2 पाई बाहर ले लेते हैं, और डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, 0 से 2 पाई आर तक. अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर बाई 2 पाई आर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. So I is equal to mr square is the moment of inertia of, so moment of inertia of a circular ring of mass m, ठीक है, वो mr square होता है. So moment of inertia of a circular ring of mass m and radius r about an axis x y dash y passing through the center is equal to mass into radius of that circular ring का square. So mr square basically उसका moment of inertia हो जाता है. क्लियर है बच्चों? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग, मान लो हम लोग को डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो समझो इसको, ये है रेडियस आर, ठीक है. अब ये देखो, हम लोगों को यहाँ पे दो डायरेक्शन के अबाउट, मान लो ये एक डायमीटर है, ये दूसरा डायमीटर है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, मतलब ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, और ये आई जेड हो गया. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अभी हमें z के अबाउट निकालना है, एक्सिस के अबाउट, तो दैट विल बी ix प्लस iy. सो अब ix प्लस iy अगर हम लोग ये मान लो कि जो भी जो सिमेट्री से डायमीटर के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है. सो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सेम मानते हैं, लेट्स से id. सो सिंस ix is equal to iy is equal to id, so we can write it as id plus of id, ix plus iy की जगह id डाल दिया, is equal to iz. So ये जो id प्लस id है, हम लोगों को पता है iz का जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, मतलब एक रिंग के सेंटर से पास करता हूँ, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर. सो id प्लस id ट्वाइस ऑफ id is equal to mr square, और id is equal to mr square by. So moment of inertia about the diameter is equal to mr square by. Clear है बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो z एक्सिस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर से इस रिंग के पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है mr स्क्वायर होता है. अब अगर हम लोग को उसी एक्सिस को, मतलब डायमीटर के उसी के एक्सिस को अगर हम लोग xy प्लेन पे ही अरेंज कर दें, राइट, सो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हम लोग निकाल. थर्ड वाला देखो यहाँ पे जो हम लोग डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाल लेते हैं, तो उसको अगर टेंजेंट के अबाउट निकालना हो तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे. मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2. और इसको अगर r डिस्टेंस, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे, जिससे ये इसके टेंजेंट के अलोंग हो जाए. तो टेंजेंट के अलोंग अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट xy निकालना है, राइट. सो दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ab प्लस ऑफ mr स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ab हम लोग को ऑलरेडी पता है, अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ mr स्क्वायर कर देंगे तो 3/2 mr स्क्वायर. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a tangent, so that is 3/2 mr square. Clear है बच्चों? Yes, sir. A moment of inertia of a uniform circular ring about a tangent perpendicular to the plane of the ring. तो अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा था वहां पे प्लेन ऑफ द रिंग में टेंजेंट हम निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको mr स्क्वायर ऐड कर दिया, तो हम लोग को टेंजेंट के अलोंग निकल गया. अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को जो दिया हुआ है वो प्लेन में, इस परपेंडिकुलर प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, उस केस में, और अगर हम लोग को इसका जो पॉइंट है, टेंजेंट वाला पॉइंट, वो वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो परपेंडिकुलर है वो दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट pq इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट yy डैश प्लस mr स्क्वायर. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट pq हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू, देखो जो yy डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 mr स्क्वायर हो जाएगा. सो I pq
is equal to 2mr square. तो यहाँ पे जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो हमने रिंग के 3-4 केसेस देखे, 4 देखे इनफैक्ट. पहला देखा जो रिंग के परपेंडिकुलर जो उसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, दैट वाज mr स्क्वायर. उसके बाद हम लोगों ने इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2, है ना. उसके अलावा तीसरा हम लोगों ने इसी के टेंजेंट के अबाउट देखा इसी प्लेन में, तो टेंजेंट के अबाउट 3/2 mr स्क्वायर हो जाए, क्योंकि mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ mr स्क्वायर गिव्स यू 3/2 mr स्क्वायर. और उसी तरह लास्ट वाला, अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि रिंग के पैरेलल है, उस केस में हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर में ये एक और mr स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं. टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? Yes, हाँ sir. सर. अब देखो इसी में रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने किया था. कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको mk स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, और उस समय k का वैल्यू जो r के टर्म्स में आता है वो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन जनरली हम लोग जो है तभी लगाएंगे जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को अगर उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, राइट, तो उसको हम लोग k के वैल्यू से बेसिकली निकाल लेते हैं. और रेडियस ऑफ गायरेशन का और भी मैंने यूज बोला था कि भाई mk स्क्वायर मान लेते हैं, तो k का जो वैल्यू आएगा एक्चुअली, है ना, तो वो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन देता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एनी डायमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय, तो अगर हम लोग को किसी डायमीटर के अबाउट जो है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस है उसके लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर रेडियस ऑफ, तो डायमीटर का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज mr स्क्वायर बाई 2. ये हम लोगों ने बहुत बारी देख रखा है. हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mk स्क्वायर ही हो, और तब हम लोग k का वैल्यू ढूंढते हैं. तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो इसको हाफ mr स्क्वायर से इक्वेट कर दें, mm कैंसिल हो गया, तो जो k का वैल्यू है वो r बाय रूट होगी. क्लियर है बच्चों? सो जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है k का, उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. अभी जो हम लोग ने निकाला सर्कुलर रिंग का निकाला, अब हम लोग सर्कुलर डिस्क का निकालेंगे. तो सर्कुलर डिस्क का निकालने के लिए सर्कुलर रिंग का पता होना जरूरी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल moment of inertia of a uniform circular disk. So suppose capital M is the mass of uniform circular disk of radius r with center. So mass capital M is the mass of uniform circular disk of radius r. Now we have to calculate moment of inertia of the disk about an axis y o y dash. Now perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. Surface area of the disk, हमें पता है टोटल एरिया ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर होता है.
So surface area of the disk is pi r square. Consider a small element of the disk which would be a circular strip of radius x and width dx. So length of this element, मान लो हम लोग मानते हैं यहाँ पे एक पतला सा रिंग एज्यूम करते हैं. इस पतले से रिंग का ये डिस्टेंस जो है सेंटर से x है और इसका जो विड्थ है ये dx हो गया. सो ये जो सर्कुलर रिंग है उसका जो यहाँ पे रेडियस है x है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई x हो जाएगा. सरकमफेरेंस 2 पाई x को अगर इस dx से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो dx से मल्टीप्लाई करके हम लोग राइट हम लोगों को उस स्मॉल एरिया का एरिया निकल जाता है 2 पाई x इंटू dx. तो ये जो पतला सा जो रिंग है उसका एरिया निकल गया 2 पाई x dx. अब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर, मास है m, तो मास पर यूनिट एरिया m बाय पाई आर स्क्वायर हो गया. सो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग 2 पाई x इंटू dx करेंगे. सो पाई और पाई कैंसिल हो गया. सो दिस इज 2mx, ये देखो 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर. सो ये हमारा मास ऑफ द एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मास ये dm हो गया. So moment of inertia of this element of the disk about y o y dash is mass into distance square. So 2mx dx upon r square into x square is 2mx cube dx divided by r square. Now as the element under consideration may lie anywhere from the center of the disk to periphery of the disk, therefore अब हम लोग को क्या करना है, ये देखो हम लोगों का मास निकाल लिया हमने 2mx dx अपॉन r स्क्वायर और उसका डिस्टेंस इस सर्कुलर रिंग जो था इस सर्कुलर रिंग में x डिस्टेंस पे dx विड्थ का अगर हम एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके, रेडियस जो रिंग का कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक. तो 2mx क्यूब dx बाय आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं. 2m बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, x क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन x4 बाय 4 होता है. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो r4 माइनस 0 हो गया. अब ये जो 2m आर स्क्वायर 2m, अब देखो r4 बाय आर स्क्वायर, इसको भी कैंसिल कर लोगे तो r स्क्वायर बचा. सो I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. यहाँ पे r4 बाय 4 एक मिसिंग है, 2 2 जा 4 हो गया, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया जैसे. ठीक है, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. तो अगर सर्कुलर डिस्क लेंगे तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है. सर्कुलर रिंग का हमने देखा था एम आर स्क्वायर होता है. तो ऐसे ही सारे जो अलग अलग शेप्स हैं उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करके रखना पड़ता है. सो ये एक टेबल हम लोग करेंगे जिसमें वो टेबल में सारा दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So for a given mass m and given radius, given size r, we find that about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of circular ring or disk. So moment of inertia of circular ring is mr square and the moment of inertia of circular disk is half mr square. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिंग में जो भी मास है ना वो दूर दूर ही है, मतलब सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही सारा मास है ना. मान लो m मास है, मास सेम है, अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इधर है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन का तो होगा नहीं, है ना. अब सेम चीज अगर हम लोग इसकी बात करें
डिस्क की बात करें तो इसमें मास पूरी तरह से इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे बिकॉज पेरिफेरी के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हायर होगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग is greater than moment of inertia of sphere. So वही चीज लिख रखा है, moment of inertia of a circular ring about a given axis is greater than moment of inertia of circular disk of same mass and same size about the same axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. So these are the moment of inertia. ये सब हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके and then I think next class we'll be able to finish the theory part. Once we are done with the theory part, we'll take 2 more days to complete the numerical. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो we'll stop here for the day और